نوٹس والے فلیٹ میں ایک میاں بیوی رہتے تھے جن کی عمر 65-70 سال کے قریب تھی. تو وہ خود ہی ان کے فلیٹ میں آ جاتے تھے اور آ کے ان سے پوچھتے تھے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, کوئی چیز چاہیے تو بتاؤ, پانی کی پرابلم تو نہیں ہے, نل میں ٹینکی کا پانی ختم نہ ہونے دینا. یدی ٹینکی کا پانی ختم ہو گیا تو سارے نلوں میں ہوا بھر جائے گی, تو ٹینکی بھرنے کے بعد بھی پانی نہیں اترے گا, اور پھر وہ پانی کی ٹینکی اور نل سے ہوا کیسے نکالی جاتی ہے اس کے اپائے بتاتے تھے. اور کہتے تھے کہ رسوئی میں پانی کی ہوا نکلنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں, ہفتہ لگ جاتا ہے. ان کے 4 بچے تھے بڑے بڑے, جن کے کہ بچے کوئی 12ویں میں کوئی 10ویں میں پڑھتا تھا. تو یہ لوگ بڑے آرام سے اپنے فلیٹ میں رہ رہے تھے, کیونکہ جب بھی کچھ چاہیے ہوتا تھا یہ پڑوس سے کہہ دیتے تھے اور وہ کام کرا دیتے تھے. آئے دن ان کا کوئی نہ کوئی بیٹا ان کے پاس آیا رہتا تھا, اور جب وہ جاتا تھا تو یہ جو لیڈی تھی یہ آ کے بتاتی تھی کہ ایسے ایسے بچے آئے تھے, سبزی لیتے آئے تھے اور میدا لے آئے تھے, اور ہم نے پوڑیاں بنائی, ہم نے بھٹورے بنائے, چھولے بنائے. بچے بہت خوش رہتے ہیں یہاں آ کے, اور جب وہ جاتے ہیں تو میں ان کو گھر میں پڑا ہوا 5-6 ہزار یا جتنے بھی ہو دیتی رہتی ہوں. کئی بار بچے آتے ہیں اور خود ہی مانگ لیتے ہیں پیسے. اب یہ جو ہمارے پاس پیسہ ہے, بینک بیلنس ہے, اور یہ جو فلیٹ ہے, یہ سب انہی کا تو ہے. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, ہمارے بچے جو ہیں بہت سیوا کرتے ہیں, روز آ جاتے ہیں, رات کو بھی فون کرتے ہیں کہ ممی پاپا ٹھیک ہے نہیں. اگر بیمار ہوتے ہیں تو اپنی گاڑیاں لے کے آ جاتے ہیں اور ہاسپٹل وغیرہ بھی لے جاتے ہیں. تبھی اچانک نیوز میں کورونا پھیلنے کا سماچار آنے شروع ہو گئے, اور اپائے بھی بتائے جانے لگے کہ ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ بنائیے, سمپرک میں نہیں آئیے, انجان لوگوں سے مت ملیے, ہاتھ مت ملائیے, منہ ڈھکے بنا, ماسک پہنے بنا باہر نہ جائیے. باہر جائیے تو اپنے ساتھ سینیٹیشن کے لیے سینیٹائزر لے کے جائیے. لیڈیز چنی والا لپیٹ کے اپنا چہرہ ڈھکیں, اور 2 گز کی دوری پہ رہیں سب سے. ہاسپٹل کی بھیڑ میں نہ جائیں, وہ نہ جائیں. یہی خبریں چلتی رہیں. ایک دن پاس کے کسی ایریا میں کورونا پازیٹیو کیس کے آنے پر سماچاروں میں سنایا گیا, تو ان کے فلیٹ کی گھنٹی بجی, دیکھا تو پڑوسن اور پڑوسی تھے, اور ان کے پاس بیگ اور سوٹ کیس تھے. وہ کہنے لگے سماچار میں بتا رہے ہیں کہ 55 سال سے اوپر کے لوگ گھر سے باہر نہ نکلے, کیونکہ وہ کورونا کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں. شوگر اور دوسری بیماریاں ہوں تو زیادہ خطرہ ہے. یہ کہنے لگے یہ تو سب ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے, ہمیں شوگر بھی ہے,
वो कहने लगा अस्थमा है, बीपी है। ये लेडी कहने लगी मैं तो एक डॉक्टर का 4200 रुपये का कोर्स लेके वो कर रही हूँ, परहेज पे चल रही हूँ, और उसके लिए तो हमें डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। तो उन लोगों ने पूछा तो ये आप बैग और ये सब तैयारी करके कहाँ जा रहे हैं? आपने तो दरवाजे पे ताला भी लगा दिया है। कहने लगे कोई नहीं, हम अपने बच्चों के पास जाने की सोच रहे हैं। 4 लड़के रहते हैं इधर ही दूसरे मोहल्लों में, जिनके बारे में आप जानते ही हैं। हम उनके घर चले जाएंगे। तो हमने कहा भी हमारा क्या होगा, हमें तो आपका बहुत सहारा है। वो कहने लगे देखो जी, अब क्या करें, दिल तो हमारा भी नहीं कर रहा। तो ऐसे करते हैं कि आप मेरे को अपना नंबर दे दो, मैं आपको फ़ोन करती रहूँगी। वो पुरुष भी मेरे से उनसे कहने लगा कि हम आपसे टेलीफोन पे बात करते रहेंगे, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, हमारा भी दिल नहीं लगेगा, लेकिन मजबूरी है क्योंकि हम लोग उसी एज ग्रुप में आ रहे हैं, बीमारियां से पहले से ही ग्रस्त हैं, तो हमें डर लग रहा है। हमें तो अपना सामान लेने सुबह कचरा की गाड़ी आती है, कचरा फेंकने भी जाना पड़ता है, दूध लेना जाना पड़ता है, लेकिन अब टीवी पे दिखा रहे हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तो हमने पूछा कैसे जाएंगे? कहने लगे कोई नहीं, नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है ना, गाड़ी में चले जाएंगे, वहाँ पार्किंग है। वो चले गए। उनके जाने के बाद ये लोग बहुत उदास हुए। काफी टाइम तक उनकी ही चर्चा होती रही कि कितने मिलनसार हैं, और बच्चे भी इनके बहुत अच्छे हैं, रोज इनके पास आते रहते हैं। तो जो इस घर की महिला थी उन्होंने कहा भी हमारे तो बच्चे हमारे साथ ही रहते हैं, और कहीं आने के जाने का इनका है नहीं कि भाई बच्चे कहीं से आए। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, माँ बाप की देखभाल जरूर करते हैं। अब हम बच्चों की चर्चा करते रहे और इनके बच्चे भी पास ही बैठ के अपनी तारीफ सुनने के लिए लालच लगे। रात को इस घर के जो पुरुष थे वो श्रीमान जी खाना खाने लगे। खाना खाते हुए टीवी देखते थे, न्यूज़ चैनल वाला। तो इतने में ही उनकी लड़की आई, कहती है पापा पापा ये साथ वाले अंकल आंटी लौट आए हैं। हम बड़े हैरान हुए, हमने कहा लौट आए? कहने लगे हाँ लौट आए हैं, नीचे उनकी हमारी गाड़ी के बराबर या की गाड़ी उनकी खड़ी हुई है और वे सामान उतार रहे हैं। उस पुरुष ने अपना खाने की थाली मेज पे रख दी और उसे दूसरी प्लेट से ढक के बाहर आ गए। उसकी पत्नी भी बाहर आ गई दरवाजा खोल के। जब वो पुरुष और महिला सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर पहुंचे तो इन लोगों को देख के उनका रोना फूट गया। वे रो पड़े, उनकी आंखों से पानी बहने लगा, आंसू बहने लगे। तो हम इन लोगों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा भी क्या बात है, आप तो अभी खुशी खुशी गए थे, आप रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ? वो पुरुष जो था अपनी जेब से चाबी लेके अपने फ्लैट का ताला खोलने लगे और वो महिला बोली चारों बेटों के यहाँ जान गए एक एक करके, लेकिन किसी ने अंदर नहीं आने दिया। कहने लगे कि नहीं,
बाहर से हम लोग किसी को नहीं आने दे रहे अंदर। हमारी सोसाइटी में जो है ऑर्डर हो गया है कि बाहर से कोई भी नहीं आएगा, और हम लोग गार्ड को फ़ोन करते हैं, वो दूध पहुंचा जाते हैं, सब्जी पहुंचा जाते हैं। ऐसे करके दूसरे के गए, उस बेटे ने भी यही कहा, तीसरे के गए, उस बेटे ने भी यही कहा, और चौथे बेटे के गए तो उसने भी यही कहा। कहने लगा जगह की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप लोग बाहर से आए हैं, अब पता नहीं आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन्होंने कहा बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं। कहने लगा हाँ माँ बाप तो हैं। और बेटा तुम जब भी आए मैंने किया, तो कहने लगा ये तो आपका फर्ज था जो आप पूरा कर रहे हैं, बाकी दुनियादारी अपनी जगह होती है। और ये महिला फूट फूट के रो पड़ी, और साथ के फ्लैट वाले जो उनके बच्चों की तारीफ कर रहे थे, उनका मन मायूस हो गया। पुरुष जो था अंदर आया और सोने की तैयारी करने लगा। उसकी पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हो, खाना अधूरा है। कहता खाने का जी नहीं कर रहा, जो दिखता है वो होता नहीं। और देखो दुनियादारी में सब उलझ के रह गया, और उसकी पत्नी भी पलंग पर बैठ गई और कहने लगी मेरा भी खाना खाने का दिल नहीं है। धन्यवाद।